Ecclesiastes chapter 3, 4, 5 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Ecclesiastes chapter 3, 4, 5 हम 3 चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। By the necessary change of times, vanity is added to human travel. To everything there is first verse से पढ़ेंगे। To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Third word से आगे, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sew, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth? I have seen the trouble which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it, and God doeth it, that men should fear before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is past. And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts. Even one thing befalleth them, as the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. All go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Wherefore I perceive that there is nothing better than that a man should rejoice in his own works, for that is his portion. For who shall bring him to see what shall be after him? Chapter 4. Introduction पढ़ेंगे। Vanity increased unto men by oppression, by envy, by idleness, by covetousness, by solitariness, and by willfulness. So
I returned and considered all the operations that are done under the sun, and behold, the tears of such as were oppressed, and they had no comforter, and on the side of their oppressors there was power, but they had no comforter. Therefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive. Yea, better is he than both they which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun. Again, I considered all travel and every right work, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. The fool foldeth his hands together and eateth his own flesh. Better is an handful with quietness than both the hands full with travel and vexation of spirit. Then I returned and I saw vanity under the sun. There is one alone, and there is not a second. Yea, he hath neither child nor brother, yet is there no end of all his labor. Neither is his eye satisfied with riches, neither saith he, for whom do I labor? And bereave my soul of good. This is also vanity. Yea, it is a sore travel. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished. For out of prison he cometh to reign, whereas also he that is born in his kingdom becometh poor. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. There is no end of all the people, even of all that have been before them. They also that come after shall not rejoice in him. Surely this also is vanity and vexation of spirit. Chapter 5. Vanities in divine service and in riches to live contentedly is the gift of God. First verse से पढ़ेंगे. Keep thy food when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not they do evil. But not rash with thy mouth. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. Hallelujah. For a dream cometh through the multitude of business, and a false voice is known by multitude of words. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy vice?
Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities, but fear thou God. If thou seest the oppression of the poor and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter, for he that is higher than the highest regardeth, and there be higher than they. Hallelujah. Moreover, the profit of the earth is for all. The king himself is served by the field. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor be that loveth abundance with increase. This is also vanity. When goods increase, they are increased that eat them. And what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes? The sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much. But the abundance of the rich will not suffer him to sleep. There is a sore evil which I have seen under the sun, namely riches kept for the owners thereof to their hurt. But those riches perish by evil travel. And he begetteth a son, and there is nothing in his hand. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor which he may carry away in his hand. And this also is a sore evil, that in all points as he came, so shall he go, and what profit hath he that hath labored for the wind? All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. For he shall not much remember the days of his life, because God answereth him in the joy of his heart. सबोपदेशक 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़ेंगे। BS है बाइबल में से। सब कामों का एक निश्चित समय, 3 अध्याय 1 वचन से। हर बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से पहले रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का समय भी, समय बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय
और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। संसार में अन्याय, 16 वचन से आगे। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हालेलुया। मैंने मन ने कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है। क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों के सुआंस एक सी है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हालेलुया। 21 वचन से आगे, क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर बढ़ चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। हालेलुया। क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को, जो मर चुके हैं ना, उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, परंतु उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं। न ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कोढ़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कोढ़ना हो। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। और न वह कहता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण न करे
चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ हो। मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निस्संदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। उतावली में मन्नत न मानना। 5 अध्याय पहले वचन से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। जो मन्नत ने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना जीवन निस्सार है। 8 वचन से आगे। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। हालेलुया। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। हालेलुया। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसकी नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। हालेलुया। 19 वचन से आगे पढ़ेंगे। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। हालेलुया। शक्ति होती है आनंद की, ध्यान रखिए। ओके, शक्ति होती है आनंद की।
परमेश्वर देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, सुख देता है, खाना पीना देता है और फिर उन सब चीज़ों को आनंद उठाने की शक्ति देता है। सीक्रेट ऑफ द लाइफ, ध्यान रखिए इस बात को। यह परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये वरदान दिया है, अन्य जाति रहे या धर्मी अधर्मी कोई भी रहे। देखो ये एक वचन को ध्यान रखना, आपको शक्ति आती है आनंद करने की, ठीक है। वो परमेश्वर की ओर से आती है, वो ठहरी रहती है, वो आपके सुख संपत्ति धन में आपको आनंद करने का भी शक्ति मिल जाता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना नीति वचन में कि परमेश्वर जब देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है ना। यही वो वचन है, उसके साथ क्या मिलाता है? आनंद की शक्ति मिलाता है, दुख की शक्ति नहीं मिलाता है। ध्यान रखना इस वचन को, बहुत प्यारा वचन है ये। 20 वचन से आगे, इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। आनंद ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के हम वारिस है। ध्यान रखना, आनंद परमेश्वर का प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी में मसीह यीशु के साथ हम संगी वारिस हैं और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। ध्यान रखना, आनंद कभी नहीं खोना, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला है कि ऐसा हो तो दुख कीजिए, वैसा हो तो दुख कीजिए, नहीं। ये दुख एक शक्ति है जो शैतान हमारे अंदर भर के हमको व्याकुल रखना चाहता है, लेकिन आनंद ये परमेश्वर की शक्ति है जिसके कारण हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती है, हमारी सेहत बढ़ती है। ओके, मन का आनंद सेहत के लिए अच्छी औषधि है। आनंद मन के लिए भी बहुत अच्छा औषध है। ध्यान रखना, आनंद परमेश्वर की संपत्ति है, परमेश्वर का धन है, आप उसे खोना नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमें हर चीज़, हर बात में तूने इतनी गहरी अच्छी भली भली बातों से तृप्त किया है, हमें फिट और फिक्स कर रहा है, हमारे जीवन को ऑर्डरलीनेस में लेकर आ रहा है। उस मंजिल में हम दिखाई दे रहे जिसमें हमको होना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है, ये सारा तेरा एहसान, हम धन्यवाद के बलिदान से हम बोल रहे हैं तुझे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे अंदर रहकर ये मंजिल हमको देने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद हो। और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर और ज़्यादा हम तेरे गहरी बात समझकर उसके अधीन रहे, आज्ञा पालन में रहे। ऐसा और ज़्यादा हम में तू प्रवेश कर, अनुग्रह में फैलता जा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। योर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 44 वर्स से 53 वर्स। 2 सैमुअल 1 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 44 वचन से 53 वचन तक और 2 शमूएल का किताब पहला अध्याय। 2 साल का बाइबल रीडिंग जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से अकेले में बैठकर अपने मन के अंदर एकांत पर्सनल टाइम को लेकर हमने पढ़ना है। जब हम पढ़ रहे होंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा, हम उनके नोट्स बना लेना है और उसके आधार से हमने जीना है रोज के जीवन में। वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे और 2 साल के अंत में परमेश्वर जैसा चाहता है उस मंजिल में हमको देखेगा और उसी में से हमारा उपयोग करना शुरू करेगा। ऐसा होने के लिए उसने हम में अनुग्रह का आत्मा रखा है। उस अनुग्रह का आत्मा का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।
पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम इन वचनों के भेद समझ सके और ग्रहण कर सके और विश्वास योग्य रहते हुए इन्हीं वचनों के आज्ञा पालन में चल सके। हमें फिट एंड फिक्स कर और हमारे अंदर से तो वो सब कुछ तैयार कर जो हमें परमेश्वर देना चाहता है उस मंजिल में होने के लिए चाहिए। हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें व्यवस्थित कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन।